The magnification occurs as two stages. The image formed by the first lens act as an object for the second lens. So the axes of the both lenses are along the same line, and the lens are fitted inside a metallic tube in such a way that the distance between them can be changed. Now, next use of convex lens is telescope. Telescope is used to see distant object clearly in their magnified form. The telescopes used to observe astronomical sources like stars, planets. Telescopes are of again two types. We have seen this in 9th standard. Refracting telescope, which uses lenses, and the reflecting telescope, these are using mirrors and also lenses. In both these telescopes, the image formed by object acts as a object for eyepiece, which forms the final image. So the objective lens has the larger diameter and the larger focal length, because of which maximum amount of light coming from the distant object can be collected. Now on the other hand, the size of the eyepiece is smaller, and its focal length is also less. So both the lenses are fitted inside the metallic tube in such a way that the distance between them can be changed. The principal axis of both the lenses are along the same line, straight line. Generally using the same objective but different eyepiece, different magnification can be obtained. You can see the refracting telescope here. The objective is having larger cross section area, and the eyepiece is having smaller cross sectional area. Now next use is optical instruments. The optical instruments are using convex lens like camera, projector, spectroscope. And the next use of convex lens is spectacles. So the convex lenses are used in spectacles for correcting the far sightedness. Now take a burning essence, अगरबत्ती है, stick in your hand and rotate it fast along the circle. तो एक सर्कुलर तैयार हो जाएगा. Draw a cage on one side of the cardboard and a bird on the other side. बहुत बार पिक्चर में ये कारीगरी दिखाई जाती है कि एक साइड पे केज निकाला है, दूसरे साइड पे कार्डबोर्ड पे बर्ड निकाला है, और वो जो है हैंग कर रहा है वो कार्डबोर्ड को विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, और उसमें वो ट्विस्ट करने के बाद वो बर्ड जो है वो केज के अंदर दिखाई देता है. ऐसा क्यों? किसी ने ये कारीगरी देखी है कभी? दैट मैजिक इज शोन मोस्ट ऑफ द टाइम. बहुत बार ये दिखाया जाता है. ये तो आप घर पे भी कर सकते हो कि एक अगरबत्ती ले लो और उसका सर्कल्स बना सकते हो. सो कितने लोगों ने ये कारीगरी देखी है, और ऐसा क्यों होता है कि हमें वहाँ पे दिखाई देते हैं कि बर्ड जो है वो केज के अंदर है? हेलो, द टॉपिक is persistence of vision. When we see an object, because the eye lens create an image on the retina. हम कोई भी चीज देखते हैं उस टाइम पे आई लेंस क्या करता है, एक इमेज रेटिना पे तैयार करता है. नाउ दिस इमेज इज ऑन रेटिना एज लॉन्ग एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ अस. ये इमेज तब तक रहेगी जब तक आपके सामने वो ऑब्जेक्ट है. ठीक तरह से ध्यान दे दो.
the image disappears as soon as the object is taken away. वो इमेज जो है वो गायब हो जाएगी जैसे ही वो सामने वाला ऑब्जेक्ट आपकी नज़र के सामने से निकाला दिया। अभी प्रॉब्लम यहाँ पे ही है। हाउएवर ऐसा होने के बावजूद भी दिस इज नॉट द इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ये जो है वो फटक से नहीं होने वाली, तो इसके लिए टाइम लगता है। द इमेज रिमेन्स इम्प्रिंटेड ऑन आवर रेटिना फॉर 1/16 ऑफ द सेकेंड। एक सेकेंड का 16वां पार्ट, इतने टाइम पर वो इमेज आपके रेटिना पर रहती है जहां से वो सामने वाला ऑब्जेक्ट निकाला। तो एक सेकेंड के 16 टुकड़े करेंगे तो वो एक टुकड़ा जो है दैट इज 1/16 ऑफ द सेकेंड। इतना टाइम तक वो इमेज आपका जो है वो कहाँ पे रहता है? रेटिना पे रहता है। नाउ होता क्या है? नाउ द सेंसेशन ऑफ रेटिना परसिस्ट फॉर अ वाइल। इसके लिए जो सेंसेशन है वो रेटिना पे रहता है कि वो इमेज क्या है कैसे, और उसको ही उसी सेंसेशन को क्या बोलते हैं? परसिस्टेंस ऑफ द विजन। अभी देख लो कि आप अगर नॉर्मली फोटोज देख रहे हो तो एक फोटो उसके बाद दूसरा फोटो, ऐसे फोटोज एक दो आते जाते रहते। लेकिन अगर वही फोटो आप जब मूवीज में डालते हो तो एक शॉट जो है वो नैनीताल में लिया जाता है, दूसरा शॉट जो है वो चेन्नई में लिया जाता है, तीसरा शॉट स्विट्जरलैंड में लिया जाता है, चौथा शॉट जो है वो राजस्थान में लिया जाता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये दोनों के बीच में किधर भी ऐसा नहीं लगता कि ये दोनों तीनों चारों शॉट जो है वो अलग अलग जगह से आए, क्योंकि वहाँ पे क्या दिया जाता है? मोशन दिया जाता है। और यहाँ पे ये 1/16 सेकंड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे ये मूवीज में इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको मूवीज ऐसे कंटिन्यू दिखाई देते हैं, लेकिन फोटोज आपको कंटिन्यू नहीं दिखाई देते। फोटोज आपको 1/16 सेकेंड के बाद अगर चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है? दो फोटो के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि ये दोनों फोटो अलग अलग है, लेकिन मूवी में आपको ऐसा नहीं लगेगा। तो दैट इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ द विजन। What examples in day to day life can you think about this? You have to list about 10 to 15 ऐसे incidences in your day to day life जहाँ पे आप देखते हो कि यहाँ पे persistence of vision मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको ये पूरा वीडियो बनाओ अच्छी तरह से, तो आपको ये समझ में आएगा। एक बार कंफर्म हो गया आपको कोई भी फंसाएगा नहीं। ध्यान दे दो, परसिस्टेंस ऑफ विजन आपकी जिंदगी में आपकी लाइफ में आपको बचाएगा, ये जो नॉलेज आज बता रहा हूं। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ डू वी परसीव द डिफरेंट कलर्स। सो the retina in our eyes is made up of light sensitive cell. We are telling this from start to end, from total 5 sessions. These cells are shaped like a rod and like a cone. दो टाइप के रहते हैं, एक रॉड लाइक सेल और दूसरा कोन लाइक सेल। अभी ये रॉड लाइक सेल्स जो है उनका काम क्या है? द रॉड लाइक सेल्स रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, दैट इज ब्राइटनेस और डिमनेस। सो दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ब्राइटनेस एंड डिमनेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट टू द ब्रेन। ब्रेन को इंफॉर्मेशन देने का काम, सिर्फ इंटेंसिटी का इंफॉर्मेशन देने का काम जो है वो रॉड सेल्स करते हैं। नाउ cone cells are the conical cells. These are responding to the color. Now they are informing to the brain about the color which is they are perceiving. Conical cells are important cells, and the brain processes all the information which is received, and we see the actual image of that object. Now rod cells respond to the faint light also, but the conical cells do not. अभी रॉड सेल जो है वो डीम लाइट भी बताता है, तो डीम लाइट्स को भी रिस्पॉन्ड करता है,
तो हमें डिम लाइट होती है या ब्राइट लाइट होती है वो पता चलता है। लेकिन डिम लाइट में अंधेरे में आपको जो है वो कलर समझ में नहीं आता, सिर्फ काला है या सफ़ेद है उतना ही दिखाई देता है। तो काला और सफ़ेद जो है दोनों कलर इसमें नहीं है। तो जो कोनिकल सेल है वो काम करना बंद करते डिम लाइट में। दस वी परसीव कलर ओनली इन ब्राइट लाइट। सो कलर जो है हमें सिर्फ ब्राइट लाइट में समझ में आता है। द कोनिकल सेल कैन रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द रेड, डिफरेंटली टू द ग्रीन एंड डिफरेंटली टू द ब्लू कलर ऑल्सो। Now, when red color fall on the eye, the cells responding to the red light, these are getting excited more than those responding to the other colors. So, we get the sensation of red color. Now, some people lack conical cells which are responding to the certain color, and these person cannot recognize those colors and cannot distinguish between the different colors. So these persons are said to be color blind. उनको क्या बोला जाता है कि वो लोग कलर ब्लाइंड पर्सन हैं, लेकिन उनकी आई साइट खराब नहीं होती। अपार्ट फ्रॉम दिस कलर ब्लाइंडनेस दे कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन they cannot distinguish between different color, but their eyesight is normal. उनकी जो आंख है वो ठीक है, वो कलर का ब्राइटनेस सॉरी जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट है उसका ब्राइटनेस डिमनेस वो समझ में आता है, लेकिन कलर आइडेंटिफाई करने का प्रॉब्लम रहता है क्योंकि उनका कोनिकल सेल बहुत ही वीक रहता है या काम नहीं करता। इस तरह से जो कलर ब्लाइंड पीपल हैं वो क्या होते हैं, कलर ब्लाइंड है, उनके अंदर वो डिफेक्ट है, कोनिकल सेल का डिफेक्ट है लेकिन रॉड सेल का डिफेक्ट नहीं है। इसके लिए उनकी आई साइट जो है नॉर्मल रहती है। ओके, थैंक यू।